مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس منصوبے کے تھرو سندھ حکومت مزدور کو بتا رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں نے سکھر سٹی کے لیے، سکھر کے بچوں کے لیے جو چائلڈ ایمرجنسی کا ہاسپٹل آج چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے سندھ حکومت کے ساتھ، اور اس سے پہلے میں نے لڑکانوں میں، اور آج میں نے سکھر کا فیسلٹی کا خود انوگریشن بھی کیا، اور اس کا میرا ٹور بھی ہوا۔ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سکھر کا یہ جو چائلڈ لائف ایمرجنسی روم ہے، وہ باقی چائلڈ لائف کا جو ہمارا فیسلٹیز ہے پورے سندھ میں، مختلف اضلاع میں، حیدرآباد، نواب شاہ، لاڑکانہ، کراچی کی 5 ڈسٹرکٹس میں، ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے جو فیسلٹیز ہے ہمارے بچوں کے لیے جو ایمرجنسی کیئر دلواتے ہیں، وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے، اور ہمارا خواب ہے کہ ہم سندھ کا ہر ضلع میں اس قسم کا فیسلٹی پہنچائے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو شرائع اموات ہے خاص طور پہ بچوں میں، وہ بہت الارمنگ تھا، لیکن الحمدللہ جب سے یہ منصوبہ سندھ میں شروع ہوا ہے اس پہ کافی اچھا اثر بھی ہوا ہے۔ مفت علاج ہمارے سندھ کے بچوں کے لیے خاص طور پہ ایمرجنسی کی صورتحال میں بہت ہی ضروری ہے، اور جو سیٹلائٹ فیسلٹی کے تھرو اور ٹیلی میڈیسن کے تھرو ہم اپنا ڈاکٹرز کو کراچی سے بیک اپ بھی کروا سکتے ہیں، اور مختلف چھوٹے ہاسپٹلز تک بھی یہ فیسلٹی یا ان کا ایکسپرٹیز پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں سندھ حکومت کا اور چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں جو مل کے اس منصوبہ پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا امید ہے کہ ہم اس منصوبہ کو سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالی لے کے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں سندھ حکومت اپنے محدود وسائل میں، جہاں ہمارا وفاقی حکومت ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا، ہمارا NFC کے شیئر کے مطابق جو شیئر ملنا چاہیے وہ نہیں دیا جاتا، جو فیڈرل ٹارگٹس ہے اپنا ٹیکس جنریشن کے لیے وہ مسلسل نہیں میٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فیڈرل ٹرانسفرز میں نقصان ہوتا ہے اور آپ کا شیئر نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سارے مشکلات کے باوجود ہمارا سندھ حکومت محدود وسائل سے، کم ریسورسز میں، مگر زیادہ محنت سے اپنے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وفاقی حکومت، PTI حکومت اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کو بالکل ہی لاوارث چھوڑا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان ایک معاشی بحران کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو 2008 سے لے کے 2013 کا دور تھا، اس دور میں پوری دنیا میں ایک فائنینشیل کریش تھا، ایک فائنینشیل ریسیشن تھا۔ پاکستان کی صورتحال ایسے تھے کہ ہمارا معیشت مشکلات کا سامنا ویسے ہی کر رہا تھا کہ اگر ہر دن آپ کے ہر شہر میں، ہر کسی شہر میں کوئی بم دھماکہ ہو رہا ہے، دہشت گردی چل رہا ہے، دو سیلاب آتے ہیں، تو ان کا ضرور معیشت پہ اثر ہوتا ہے۔ مگر اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ریاست نے اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ معاشی مشکلات میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبہ لے کر آئے تاکہ اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو اس مشکل حالات میں کوئی مدد مل سکے۔ ہم نے اس ملک کے جو پینشنرز ہیں ان کا پینشن میں 100% اضافہ کیا، جو امپلائیز ہے ان کا تنخواہ میں 100% سے زیادہ اضافہ کیا، جو فوج کا تنخواہ ہے، جو ہمارا سپاہیوں کا تنخواہ ہے اس میں اضافہ کیا تھا۔ اور اس کا برعکس آج جب ہم مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج جب ہم معاشی بحران کا مقابلہ کر رہا ہے، تو ہمارا وزیر اعظم کے پاس کوئی مسائل کا حل نہیں ہے۔ وہ خود مانتا ہے کہ وہ ٹریننگ پہ ہے، وہ خود مانتا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک میں جتنے لوگ ہیں وہ اس قسم کا ملک کا حکمران نہیں رہ سکتا۔ وہ خود مانتا ہے کہ عوام مشکلات میں ہے، عوام مہنگائی کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا حل کیوں ہے، کیا ہے، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔
यही तो वजह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में सारे के सारे जो सियासी जमातें हैं, हम मुतालबा कर रहे हैं कि वैसे ही ये वज़ीर आज़म नाजायज़ है, उसके ऊपर नालायक और नाअहल भी है, तो उसको फिलफौर मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब भी PDM का जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्ग मार्च का कॉल देगा, एहतजाज का कॉल देगा, तो सखर के अवाम हमारा शाना बशाना होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इस कठपुतली नाजायज़ वज़ीर आज़म को घर भेज देंगे। चेयरमैन साहब, देखा ये गया है कि पीपल्स पार्टी ने काफ़ी अब अवामी मंसूबे भी दिए, महंगाई भी इतनी नहीं थी, सरकारी जो साधन हैं और दीगर वो उनकी जो तनख्वाहें थी उसमें भी इजाफा किया गया। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत होता है। मौजूदा हुकूमत में महंगाई भी बहुत उरूज पे है, उसके लिए कोई प्रोपेगेंडा इतना नज़र नहीं आता, तो आप क्यों डिफेंड नहीं कर पाती पीपल्स पार्टी इस चीज़ को अपने हवाले से? हम समझते हैं कि हम अपने पूरा कोशिश करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अचीवमेंट्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो आवाम के सामने लेकर आने के लिए। लेकिन जैसे कि आपको पता है, इस मुल्क में आज से नहीं, 2018 से नहीं, काफ़ी देर से एक साजिश चल रहा है कि जो आपका अपना 1973 के आइन और उसके बाद 18वीं तरमीम के तहत जो हुकूक आपको दिए गए हैं, जो आपके हक है, उस सब को रिवर्स करने का एक मंसूबा चल रहा है। और उसको उस एम को हासिल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज से नहीं मुसलसल किरदार कशी की जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 2008 से लेके 2013 का जो दौर था, वो पाकिस्तान की ज़राअत के लिए सबसे बेहतर दौर था। वो पाकिस्तान की मज़दूर के लिए, पाकिस्तान की किसान के लिए सबसे बेहतर दौर था। वो पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए एक ऐसा दौर था जब आपको पता था कि जी हमारे पास वसाइल कम हैं, लेकिन हमें ये तो पता है कि हमारा हुकूमत हमारे साथ खड़ी है। अब जो हुकूमत अवाम के ऊपर मुसलत की गई है, वो अवाम दुश्मन हुकूमत है, वो मज़दूर दुश्मन हुकूमत है। वो इन सूरत हाल में भी, इस मुआशी सूरत हाल में भी एक महीना में 3-4 दफ़ा आपका जो पेट्रोल का बिल है या गैस का बिल है उनमें इजाफा की जाती है। वो इस किस्म का जालिम हुकूमत है कि आपको अपना गैस से महरूम रखा जाता है। वो इनकी नालायकी की वजह से एक ऐसा मुल्क जो ज़राअत का मुल्क है, जहाँ गंदम उगता है, जहाँ चीनी उगता है, एक ऐसा मुल्क को मजबूर किया जाता है कि उनको इन किस्म के जो फसलें हैं इनको इम्पोर्ट करना पड़ता है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त में हमने पाकिस्तान को गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बना दिया था, तो ये सारे नतीजे आपको पता है। जो पढ़ते हैं, जो इन चीज़ों का इल्म रखते हैं, उनको हमारा अकॉम्प्लिशमेंट्स का भी पता है और इस प्रोपेगेंडा का वजूहात भी पता है। हम समझते हैं कि जैसे हम जगह जगह जा रहे हैं, पाकिस्तान के हर इलाके में पहुंच रहे हैं, गिलगित के पहाड़ों से लेके हर सूबे में जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम डायरेक्टली अपने पैगाम, अपना पार्टी के मंशूर और नज़रिया अवाम के दरमियान लेके जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये तजवीज़ मेरे सामने इस वक्त तक नहीं लेकर आया गया। जब PDM जो भी फैसला करेगा इंशाअल्लाह ताला हम सब उस पर नहीं, मैं बिल्कुल स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। PDM में मौलाना फजल रहमान PDM का सदर है, राजा परवेज़ अशरफ साहब PDM का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और वो अलॉन्ग विद हमारा अदर मेंबर्स शरीक थे। मरियम शरीफ साहिबा भी अपना पार्टी की ओहदेदार है, वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नवाज़ का। और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ का ना सदर, ना नवाज शरीफ साहब या अपने
कोई ऐसा नुमाइंदा पहुंच सकता है, उनका हक है कि अपना PDM के जो भी डेलीगेशन है, जो भी वो बनाना चाहे वो उनको भेज सकते हैं। चेयरमैन साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ पीटीआई की तरफ एहतजाज के फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई फैसला सामने नहीं आ रहा, दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातों के खिलाफ इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लाइक जैसे मौलाना फजल रहमान के लिए कहा गया तो जो मदरसे के बच्चे लाएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक ये स्टेटमेंट आ रही है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फॉरेन फंडिंग के हवाले से डिटेल्स मांगी गई है, इस बारे में क्या रखी जा रही है? अब मैं समझता हूँ कि हर इदारा को गैर जानबदार होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए। हमने देखा कि जब 2018 में इलेक्शन कमीशन का एक मुतनाज़ा रोल रहा तो पूरा मुल्क पे उसका असरात क्या था। 2014 से PTI की अपनी फाउंडिंग मेंबर ने अपने पार्टी के खिलाफ सबूत जमा किया है इलेक्शन कमीशन में। मैं या कोई और मुखालिफ PTI का ने ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उनका अपना फाउंडिंग मेंबर ने अपना पार्टी को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन के दरवाज़ा खटखटाया कि बहरूल मुल्क शहरियों की तरफ से PTI की फंडिंग हुआ। मैंने सुना है कि उस लिस्ट में भारत के शहरी भी मौजूद है, इजराइल के शहरी भी मौजूद है। आज 2020 है, हमने देखा कि किस तरीके से ये हुकूमत 2018 में हम पर मुसल्लत किया है। उस हुकूमत कायम होने के बाद जो नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पाकिस्तान ने लिया है अंदरूनी और बहरूनी, वो भी आपके सामने है। और मैं समझता हूँ कि अब हर पाकिस्तानी मुतालबा कर रहा है कि हमें बताया जाए कि कौन लोग थे जिन्होंने PTI को फंडिंग दी, उनका मुतालबात क्या थे, उनके लिए ये हुकूमत ने किया क्या है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी स्कैंडल है। इसको छुपाने के लिए PTI और उनके सहूलतकार ने झूठे इल्जामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाए हैं कि आपका भी फॉरेन फंडिंग है। उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया है। इस इल्जाम के पीछे कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातों हैं। जहां PTI के केस में उनका अपने मेंबर ने सबूत पेश किया है। अब जब हमने ऐलान किया कि 19 जनवरी को PDM के सारे जमातें एहतजाज करेंगे कि इलेक्शन कमीशन और PTI के जो गठजोड़ है PTI फॉरेन फंडिंग केस में वो खत्म हो, कि इलेक्शन कमीशन कौम के सामने ये इंफॉर्मेशन लेकर आए कि PTI जो अब मानती है कि हमारा किसी एजेंट की गलती से ऐसा कुछ हुआ होगा, वो फिल फॉर इस केस जो उनको इलेक्शन से पहले फैसले सुनाना चाहिए था, वो आज वो फैसला सुनाए, आज वो हकायक पाकिस्तान के कौम के सामने लेकर आए। लेकिन हमारा संजीदा 11 जमातों का मुख्तलिफ बार के प्लेटफॉर्म्स का जो ये डिमांड है, इससे इंगेज करने के बजाय उन्होंने उल्टा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन में सामने पेश करने की हिदायत दी। मैं समझता हूं कि ये एक सियासी स्टेप है, ये ब्लेटेंटली एक पॉलिटिकल मूव है और हमारा इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार रहना चाहिए, गैर सियासी रहना चाहिए और जो सवाल हर पाकिस्तानी के ज़हन में है उसका जवाब देना चाहिए। फिलहाल साहब ये बताइएगा, आपका इंतहाई सख्त जहाँ तक नैब की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ सबसे पहले दिन से जो था वो आज भी वही है कि ये एक आमिर का काला कानून है और सारे जमातों को, पूरे पाकिस्तान को जैसे हर काला कानून का
आमराना कानून का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत किया है, वैसे हम इसका भी मुखालफत करते हैं और बाकी सब से कहते हैं कि इसका मुखालफत करें। अब अच्छी बात यह है कि सारी जमातों जो हैं वो इस पेज पे भी आ चुके हैं कि नैब एक मुतनाज़ा इदारा है। जहाँ तक सखर की बात है, जिस तरीके से हमारा यहाँ का नैब एक सियासी कठपुतली बन चुका है, जो मुख्तलिफ जगह के टेलीफोन कॉल्स पे चलता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे नुमाइंदा को हरास करने का जो ऑर्डर किया गया है उनको, और वो उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर हम सख्त एहतजाज भी करते हैं। हम उसी खुर्शीद शाह साहब के घर में हैं जो अब नैब का सबसे इस असेंबली का सबसे लॉन्ग टर्म सियासी कैदी है। ना कोई केस है, वो अरेस्ट करने के बाद आप आ जाते हैं नाप लेने के लिए, लेकिन अपना सियासी मकसद हासिल करने के लिए, पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए हम देख रहे हैं कि वो नोटिस तो बेचते हैं, अरेस्ट की धमकियाँ तो देते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मेंबरान पे फ़ख्र करते हैं कि इनके दबाव के बावजूद वो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। जिस हद तक वो सियासी हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में सखर का जो नैब है वो उनका जो एग्ज़ाम्पल है वो अब आपके सामने है। ना सिर्फ खुर्शीद शाह का जो इंसिडेंट है, मगर जो मैंने लेबर का फ्लैट्स आज इनॉग्रेट किया है, वो इतने सियासी है कि नैब के लोग ने, नैब के ऑफिसरान ने आके हमारा मंसूबा का ना सिर्फ इफ्तिताह मगर प्लॉट्स बांध रहे थे। वो इतना सियासी है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में डालते हैं और सियासी कैंपेन भी चलाते हैं। वो इतने सियासी है कि सारे के सारे पॉलिटिकल अपोजिशन के खिलाफ केसेस होते हैं, और जब उनका चेयरमैन मान चुका है कि अगर मैं 2-3 फाइल इस हुकूमत लोगों का उठा दूं तो हुकूमत गिर जाता है, एक कदम नहीं लिया जाता उनके खिलाफ। जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ऑफिशियली कहा है कि पीटीआई की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है, पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन हुकूमत है, जब बिलियन ट्री सुनामी का स्कैंडल, बीआरटी का स्कैंडल, मालम जब्बा का स्कैंडल, हर वजीर के साथ आटा चीनी चोरी तेल का जो साजिश हुआ, ये सारे स्कैंडल्स आपके सामने हैं, मगर इन केसेस पे नैब खामोश हैं, तो फिर पूरा पाकिस्तान के सामने है कि ये एक सियासी अदारा है। मेरा तजवीज़ है पीडीएम के जमातों के लिए और हमारा सिंध के जो मेंबरान पार्लियामान है कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो ऑफिसरान करप्शन का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो खुद तो करप्ट नहीं है, और पूरा पाकिस्तान के लिए और हर सूबा में ये कानून साजी करना चाहिए कि जो ऑफिसर्स नेशनल असेंबली में भी होना चाहिए, हर सूबा में भी होना चाहिए। मेरा ख्याल में करप्शन एक एंटी करप्शन एक डिवॉल्व टॉपिक है, तो यहाँ भी लेजिस्लेशन हो सकता है, मैं अपने लॉयर से, लॉ मिनिस्ट्री से बात करना पड़ेगा। लेकिन जो भी ऑफिसरान, चाहे वो आईओ हो या वो नैब चेयरमैन हो, जो एंटी करप्शन का काम में लगे हुए हैं, उनको अपने सारे के सारे असासे डिक्लेयर करना चाहिए। उस दिन के असासे जब वो करप्शन के इदारे में काम करने शुरू कर दिए थे, और सालाना और आज का जो उनके असासे हैं, अगर इस पे हम कानून साजी करते हैं तो पूरा पाकिस्तान को पता चलेगा कि असल में करप्ट कौन है। जहाँ तक मीडिया के हुकूक है, हम समझते हैं कि हर किसी इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उनका हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और जिस हद तक
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, चाहे वो PFUG हो या वो अपना प्रेस क्लब्स हो, साथ दे सकते हैं हम, वो तो सियासी तौर पे दे रहे हैं। कुछ पॉलिसी सजेशंस है जिस पे हम काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नासिर शाह साहब ने आज जिक्र किया था हमारा मजदूर सिटी का इवेंट पे, जिस पे हम जो हुकूमत ड्यूज़ और एड्स का जो सिलसिला है आपके इदारों के साथ, उस पे हमारा कोई अरेंजमेंट उनके साथ हो कि जैसे हम ये पैसा देते रहें ऑन द कंडीशन कि वो सबसे पहले जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं वो उनका ड्यूज़ भी उस पैसे के साथ पे करें। तो इस किस्म के स्टेप्स लिए जा सकते हैं हुकूमतों की तरफ से ताकि हम मज़दूरों के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए, सब के लिए इस मुश्किल वक्त में जो भी हम फैसिलिटीज़ पहुंचा सकते हैं वो हम करें। जहाँ तक चाय की दावत है, वो एहतजाज का जहाँ लोकेशन है वो तो PDM का फ़ैसला है। चाय पीने का जो स्टेटमेंट है, आई थिंक दैट वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि वो हमें खाना खिलाएगा, हमें कंटेनर्स भेजेगा, तो मैं इसी तरीके से ये स्टेटमेंट भी देखता हूँ। थैंक यू। यही हमारा मुतालबा है, यही हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन को इंसाफ करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उस सवाल का जवाब देना चाहिए जो हर पाकिस्तानी के ज़हन में सवाल है, जो 2014 से केस चल रहा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक अचानक सू मोटो का केस आ सकता है इलेक्शन के दौरान कि कोई FIR जो 2016 में कटा वो 2018 में सुस्त रवि का शिकार है, तो आई एम श्योर कि अगर a case of such magnitude, of such implications for all of Pakistan has been running since 2014, तो वो भी उसी सुस्त रवि की शिकार कैटेगरी में आएगा। तो हमारा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन से, और हमारा मुतालबा है अदालत से, हर इंसाफ करने का इदारा से, कि ये केस एक नेशनल इम्पोर्टेंस की केस है और उसको उस दिलचस्पी के साथ फॉलो अप करना चाहिए और फिर पूरा फैक्ट्स पाकिस्तान के अवाम के सामने ले आना चाहिए। कल ही आप सब के साथ उमरकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत का जलसा करें।